Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Poem 5, A Legend of the Northland, Part 2. So in Part 1, we have already discussed a lot about the poem, right? We all know this is a ballet poem, right? Ballet, in short, we can say there is a story in this poem, okay, with a moral, fine. So we have already discussed that one of a saint whose name was Saint Peter. First of all, that this is a story, or this is a poem all about the Northland, and it is a legend of the Northland, and we can say it is an old traditional story of this, right, which is being given to one generation to generation, right? So it's passing to generation, we can say. Okay, and next we have discussed that first of all such things we have discussed about Northland, how the atmosphere of Northland, it is full of snowy. Here you can find reindeer, right? You can find sledges. You can see in the picture here. इट्स गिवन स्लेजेस क्या होता है वो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया है, ठीक है। और वो मैंने समझा था कि लाइक सैंटास का जो एक व्हीकल होता है हम यूजुअली जिसे देखते हैं वो स्लेजेस होता है, फाइन। Next thing we have discussed that one of saint here whose name was Saint Peter, right? He was we can say he's one of the great saint according to this story. And what happens to him? Saint came to a woman house in the Northland just when she was baking cakes in her fireplace for herself. Fine. So this was last what we had discussed in part 1, and now let's continue के अब वो सेंट वुमेन के डोर पे गया, एंड एट दैट टाइम वुमेन वाज बिजी इन मेकिंग और सॉरी बेकिंग केक्स, फाइन। सो अब वो जब केक बैक कर रही थी, एट दैट टाइम वो पीटर वहां पे पहुंचे, सेंट पीटर वहां पहुंचे, एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, यहाँ से हमारी स्टोरी बाकी है। सो लेट्स मूव ऑन। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So finally, Saint Peter was there on the door of that woman who was busy in making or baking cakes in her fireplace for herself. Fine. So Saint Peter's body was pale and tired at the end of a long day. Okay, during which he had been fasting. What happened? उनकी बॉडी कैसी हो गई थी, यहाँ पे यही बोला है, दैट इज एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग. सो आई एक्सप्लेन दैट ओनली कि सेंट पीटर्स वाज पेल एंड टायर्ड क्योंकि यूजुअली सेंट की हमने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, राइट, वो जगह जगह पे घूम रहे हैं. ही हैव ऑलमोस्ट ट्रैवल्ड अराउंड द अर्थ, वी हैव स्टडीड दैट. सो हियर व्हाट हैपेंस के आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉट, राइट, और कई दिनों से वो शायद फास्ट कर रहे हैं, ही इज बीइंग फास्टिंग फॉर मेनी डेज, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड कि अब उनमें एनर्जी नहीं रही है, अब उनकी बॉडी बहुत वीक हो रही है, वो फेंट हो रहे हैं. फेंट वी कैन से वो लिटिल बिट अनकॉन्शियस हो रहे हैं कि भूख के मारे बॉडी ने जवाब दे दिया. ओके, सो व्हाट हैपेंड, so he was tired at the end of a long day. Okay, and for the day was almost done, so for himself we can say कि उनके लिए वो दिन अब पूरा हो गया है और वो बहुत ज्यादा tired है. Okay, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So then what happened, to sustain himself, खुद को जिंदा रखने के लिए, what he did, because he wants some food anyhow. Okay, and that's why he was demanding cake from that lady. और वो क्या कहते हैं, he asked the woman to give him only one of the many cakes that she was baking. हमने देखा कि वो cakes bake कर रही है, केक नहीं, right? That means she was baking a lots of cakes, we can say. ठीक है, वो एक केक नहीं बना रही है, वो cakes बना रही है. See, from her store of cakes, उसका शायद पूरा स्टोर है, मतलब बहुत सारी वो केक्स बेक कर रही थी. सो बिकॉज वो इतने दिन से फास्ट कर रहे हैं सेंट पीटर, एंड दैट्स व्हाई नाउ टू सस्टेन हिमसेल्फ, अब खुद को जिंदा रखने के लिए, ही डिमांडेड ओनली अ सिंगल वन ऑफ केक. ओके, और वी कैन से अ पीस ऑफ केक और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इतनी सारी केक्स में से उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे थोड़ा सा वो केक, एक सिंगल वन मुझे दे दो, और अदरवाइज ही वुड डाई. Okay, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Now what happened? Now अब चिल हमने देखा कि सेंट
पीटर उनसे वो डिमांड कर रहा है फॉर अ पीस ऑफ केक और अ सिंगल केक वी कैन से, सो दैट के ही कैन एबल टू सस्टेन। फाइन। अब बेकिंग ले क्या है, वॉज बीइंग बैक्ड। कुछ केक्स अभी बन रही थी और कुछ केक बन चुकी थी। फाइन। सो सम ऑफ आर वॉज बीइंग बैक्ड, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। जो रेडी हो गई थी वो केक अभी बहुत थोड़ी सी थी उसके पास। Okay, so the woman baked a very small cake, but before she could give it to Saint Peter, she started thinking that it was too big to just be given away like that. Yes, यही हुआ। Are you getting? See, poem की lines देखो। So she made a very little cake. Already, we have seen that she was baking a lots of cakes. Cakes bake कर रही है, cake नहीं, she was baking cakes, right? And what happened? For according to her, ये cake भी बहुत कम है उसके लिए, okay? और but as it baking ले, और कुछ तो अभी क्या हो रही थी, was being baked, अभी कुछ cakes बन रही थी। So she looked at it and जो केक्स रेडी थे उसके सामने वो देख रही है। She was looking at the cake and what she started thinking that it was too big to just be given away like that. वो क्या सोचने लगी कि इतनी सारी या इतना सा वो उसके लिए वो सिंगल वन भी ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे ही जाने दूं इतनी ये केक को, इतनी बड़ी सी केक को मैं ऐसे ही दे दूं मुफ्त में, या ऐसे तो मैं नहीं दे सकती, राइट? सो शी वाज स्टार्टेड थिंकिंग, अभी तो उसने दिया ही नहीं है और अकॉर्डिंग वो बहुत सारी केक्स बना भी रही है, बट इवन दो शी वाज नॉट रेडी टू गिव अ सिंगल वन, ओके, एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसे ही मैं कैसे जाने दूं ये केक। So the woman went on the make on even smaller cake, right? So उसने ये सोचा कि भाई ये केक तो बहुत बड़ी है उनको देने के लिए, ऐसे ही मुफ्त में मैं किसी को कैसे दे दूं ये केक इतनी बड़ी, राइट? मुफ्त इन द सेंस के she was इतनी greedy कि she was not ready to give that cake. उसे लगा कि ये केक का पीस तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं दे सकती, राइट? So next क्या हुआ देखो। Therefore she needed another. So she decided कि इतनी बड़ी केक मैं नहीं ऐसे ही दे सकती, तो उसने सोचा कि मैं दूसरी बना के देती हूँ। फाइन। तो उसने दूसरा डव बनाना शुरू किया। She needed another one. Needed का मतलब क्या होता है? नीड करना, यानी जैसे हम आटा बेल बनाते हैं ना, रोटी का आटा बनाते हैं, इस तरीके से केक का डव बनाया, उसे नीडेड करना कहते हैं, नीड करना, ठीक है? सो उसने दूसरा आटा रेडी किया, यानी दूसरा डव रेडी किया केक का, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। और उसने क्या सोचा कि वो जो केक बैक की थी जो रेडी है, जो वो नहीं देना चाहती अकॉर्डिंग टू हर कि ये केक बहुत बड़ी है, उसने सोचा कि उससे छोटी केक मैं बनाऊंगी ये, ठीक है, सो दैट उसको मैं दे सकूं, किसको? सेंट पीटर को। बट व्हाट हैपेंड? बट दिस आल्सो लुक्ड एज बिग एज द फर्स्ट वन टू हर। अब क्या हुआ? केक बन गई, रेडी हो गई। जब उसके सामने देखा तो अकॉर्डिंग टू हर व्हाट हैपेंस, उसे तो ये भी केक उससे भी बड़ी लगने लगी, जो पहले वाली थी उससे भी ये केक बड़ी लगने लगी, या उतनी उसके जितनी लगने लगी सी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। उसने सोचा कि ये तो पहले जैसी बड़ी बन गई है, ये तो छोटी बनी नहीं। सी उसने ऑलरेडी एक केक बनाई थी, वो उसको बड़ी लगी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज नॉट रेडी टू गिव हिम, राइट? एंड अनदर वन शी नीडेड, राइट? अनदर डो उसने तैयार किया। बट व्हाट हैपेंड? वो डो तैयार करने के बाद भी when it was baked, जब उसको देखा तो उसने सोचा ये तो उतनी ही बड़ी है जितनी वो वाली थी, राइट? सो अब क्या करे? अब वो क्या करेगी? अगेन फिर से वो एक केक बनाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Now what happened? पहले वाली केक बनाई, वो उसे बड़ी लगी, so she refused to give. So she thought कि एक छोटा सा मैं केक का वो डव रेडी करती हूँ, and then after all वो छोटी सी केक बना के दूंगी। वो रेडी की तो उसे वो भी बड़ी लगी कि नहीं नहीं ये भी मैं नहीं दे सकती। See how much greedy she is. Fine. He was waiting, he was fainted, he was there to die, but she doesn't matter. She only matters about the cake. Fine. So now what happened? Then she took a tiny scrap of dough. Finally, right, in her third attempt, what happened? To make a cake so small that she wouldn't mind giving it away, she took an extremely small lump of dough. ठीक है?
उसको क्या लगा कि इतनी बड़ी केक तो मैं नहीं जाने दे सकती. सो थर्ड अटेम्प्ट उसने कैसे किया, दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट राइट टू गिव हिम अ केक, बट अभी तो उसने दी नहीं, स्टिल शी वाज थिंकिंग एंड स्टिल शी वाज, तो उसने एक टाइनी स्क्रैप लिया. टाइनी स्क्रैप का मतलब कहते हैं एक छोटा सा लंप ऑफ डव लिया उसने. वो डो को उसने ये सोचा कि अब मैं इससे और छोटी सी केक बनाऊंगी सो दैट कि मैं उसको दे सकूं. Fine. And when she rolled out the dough, her cake was as flat as, or we can say thin as a wafer. ठीक है. और उसने जब रोल्ड किया उसको, उसका उसका मकसद क्या था कि मैं एक छोटा सा पीस ही दूं केक का, राइट. सो उसने ये सोचा कि मैं इसको, उसने रोल्ड करना शुरू किया एंड इट वाज सो फ्लैट, इट वाज सो थिन एज अ वेफर. कितना थिन कर दिया था उसने, जैसे एक वेफर बनाई हो. वेफर्स भी ऑल लो, राइट, थिन स्लाइसेस होती है, उतना उसने पतला बना दिया. Then what happened? But she couldn't part with that. Even though the woman say that the cakes that seemed small when she herself ate them were all too big to donate for free. And as a result, what happened? She ended up keeping all the cakes on the shelf and not giving any to Saint Peter. Finally, what happened? कि अब उसने डव रेडी कर दिया, वेफर्स जैसा बना दिया, हमने देख लिया. अब मुझे तो नहीं लगता ये केक उसे देने वाली है. गेटिंग. सो व्हाट हैपेंड कि इससे भी उसका मन नहीं भरा कि नहीं यार ये भी देने का मन नहीं हो रहा उसका. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. वो उससे भी, वो छोटे वेफर्स जैसे वो जो भी उसने बनाया था उससे भी उसे ऐसा लगा कि नहीं ये भी मुझसे नहीं दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट वो क्या करती है, I don't think she is going to give her. ये मैंने पहले ही बोल दिया कि she is not going to give her. See, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब क्या किया उसने, उसने ये कहा कि ये केक जो अभी छोटी दिख रही है, उस जो थर्ड अटेम्प्ट ने उसने केक जो बनाई, इट वाज लुकिंग क्वाइट स्मॉल. वो केक उसने उसे बहुत छोटी लग रही थी. बट व्हाट हैपेंड कि व्हेन शी हरसेल्फ एट देम, राइट, वर ऑल टू बिग टू बी डोनेटेड फॉर द, राइट. सो शी थॉट कि अभी तो मुझे ये छोटी लग रही है, बट जब मैंने खुद खाई, व्हेन आई ईट ऑफ देम myself, जो लाइन दी है, when she herself at them, according to her it was quite big or it was quite large to donate, right. इतनी बड़ी केक, उससे तो ऐसा लगा कि मेरा तो पूरा पेट भर गया, मुझे अब ये केक नहीं देनी चाहिए, तो काफी बड़ी है. गेटिंग. सो उसने सोचा कि नहीं नहीं, are yet too large to give away. उसने सोचा कि ये इतनी बड़ी केक मैं कैसे दे दूं. She ended up keeping all the cakes on the shelf and not giving any to Saint Peter. ओके. सो उसने क्या कर दिया कि छोड़ो, कुछ भी नहीं देना. उसने पूरा जितने भी केक्स बनाए थे वो सारे अपने शेल्फ पे रख दिए और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया. सो दिस वाज द एंडेड, ओके, और वी कैन से दिस वाज द एंड ऑफ द, और वी कैन से हाइट्स ऑफ द ग्रीडीनेस. ठीक है. केक तो उसने वेट करवा के रखा, या तो वो पहले ही मना कर देती कि नहीं देना मुझे. फर्स्ट अटेम्प्ट गया, सेकंड अटेम्प्ट गया, थर्ड अटेम्प्ट किया, वो बंदा मरने पर पड़ा हुआ है, फास्ट कर रहा है एंड वो अपनी ग्रीडीनेस छोड़ने को तैयार नहीं, वो एक केक का पीस, एक टुकड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस देन, फाइनली उसने डिसीजन लिया दैट शी वाज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू दैट पीटर एंड शी पुट ऑल सच केक्स इन हर शेल्फ. Next what happened, see, then good Saint Peter grew angry. Now what happened, यहाँ पे देखो क्या बोला है, good Saint Peter, यानी सेंट पीटर यूजुअली गुस्से वाले या प्रोवोक्ड जैसे नहीं इंसान है. he was a good saint, but वो भी गुस्सा हो गए. सी, एक लेवल होता है कि आप किसी को ऐसे बहुत शांत इंसान है जो आपको लगता है कि ये कभी गुस्सा नहीं हो सकता, ऐसे पर्सन को भी अगर आप गुस्सा दिला देते हो तो दैट मीन्स आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है. You have crossed all the limits, and here that woman has crossed all the limits, and that's why what happened, that good Saint Peter grew angry. वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए. These angered Saint Peter because he was hungry and weak. क्यों गुस्सा हुए? For he was hungry and faint. राइट. सेकेंड लाइन देखो, for he was hungry and faint. वो गुस्सा हो ऐसे पर्सन नहीं है. राइट. एक केक के टुकड़े के लिए कोई बंदा गुस्सा हो जाए, राइट, तो वो सेंट नहीं. बट द रीजन वॉज नॉट सेंट, the reason was not cake, sorry, but the reason was his hungerness.
राइट वो पीले पड़ रहे हैं, वो वीक फील कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं, was feeling so hungry, he can't just wait and he is having और उस बंदी ने क्या किया, उस वुमेन ने पहले अटेम्प्ट में वो बोल रही है कि केक दे रही है, राइट वो बना रही है, वो फ्रेश बना रही है, तो कोई भी बंदे को एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, right? Saint Peter also having that expectation that no, she is going to give me, that's why he was waiting there and there and there, but what happened at the end, she refused to give anything. Fine. And surely such a woman was enough to provoke a saint. And what she had done, that woman, uski selfishness, right, had been able to do so. और जैसे मैंने कहा कि सेंट पीटर, गुड सेंट पीटर बोला है यहाँ पे, he was not that a man जो छोटी बात में provoke हो जाए, angry हो जाए, but what that woman had done, right, जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा हो गया, वो प्रोवोक हो गए, वो भड़क गए उस वुमेन पर, राइट, और उसने जो भी किया, दैट वाज ऑल इनफ टू प्रोवोक अ मैन और अ सेंट, फाइन. एंड ही सेड, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब वो इतने प्रोवोक्ड हो गए, that man have been so much provoked that now he cursed him, sorry, that Saint Peter cursed her, that woman, right? What he said, you are far too selfish, तुम इतनी selfish हो. Saint Peter curse him the selfishness of the women, right, that you are so selfish to dwell in a human form, तुम human being बनने के लायक नहीं हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग के घर में रहने के लायक नहीं हो. द लाइफ यू आर लिविंग ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म, तुम उसके लायक नहीं, अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर, तुम इतनी सेल्फिश हो, right? Telling her she did not deserve to have such comforts of human life, like a warm fire, a house to live in, and a good food to eat whenever she wanted. That's true ना. ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम वो सब कुछ, हमारे पास अच्छा घर है, खाना है, कपड़ा, मकान, and all such things we have, right? एक ऐसी fire which keeps us warm. So according to the Saint Peter, what he is telling, sorry, that she did not deserve to have such all comforts, right? According to him कि वो ये ऐसे comforts के लायक नहीं है, वो ह्यूमन लाइफ की लायक नहीं है, जहां उसे एक वार्म फायर मिल रही है, जहां एक घर मिल रहा है वहां जिसमें वो रह सकती है, गुड फूड मिल रहा है whenever she wants to eat. So वो उसे, इन शॉर्ट वी कैन से कि वो उन्हें कर्स कर रहे हैं. सेंट पीटर लेडी को कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं. अब उन्होंने सुनाया कि पहले तो तुम कैसी हो, गेटिंग, अब वो श्राप क्या देते हैं, वो कर्स क्या करते हैं, वो देखो. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. What that man is saying, what Saint Peter is saying, ke ab now he is cursing him, and Saint Peter कैसे curse कर रहे that Saint Peter cursed the woman that she would have to build her own nest like birds do. जैसे birds अपना nest बनाते हैं, खुद मेहनत से बनाते हैं ना, बर्ड्स अपना नेस्ट मेहनत से बनाते हैं, राइट, उसमें होल्स करते हैं, डिग होल्स इनटू हार्ड ड्राई वुड. वो जैसे यहाँ पे, क्योंकि वो उसे वुड पिकर बनाने वाला है, वुड पिकर बनाने के लिए वुड पिकर का काम क्या है कि अपना नेस्ट वो खुद बिल्ड करता है, और उसे छोटा छोटा खाना, स्कैंटी फूड यानी इंसेक्ट्स खाने के लिए भी उसे एक होल बनाना पड़ता है इनटू हार्ड ड्राई वुड to get food to feed herself, getting. So उसे वो श्राप दे रहे हैं कि तुम भी ऐसे बर्ड्स की तरह अपना घर खुद बनाओगी, राइट, और तुम्हें खाने के लिए भी what happens कि you have to dig the holes into hard dry wood to get food to feed yourself, right? The woman went up and वो क्या बोल रहा है, by boring and boring and boring. boring का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, making holes in the tree trunks with a bigs for finding food. Fine. So this is called boring. वो holes जो बनाते हैं woodpeckers, और उसमें से जो insects निकलते हैं वो उसे खाते हैं. So वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें scanty food के लिए, ऐसे छोटे छोटे insects के लिए इतना struggle करना पड़ेगा जितना आज वो सेंट पीटर struggle कर रहे right now, right? All day in the hard dry wood. पूरा दिन तुम्हारा यही काम होगा और यही करती रहोगे. So this was what he cursed to the woman. Okay. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and
out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब ये हुआ, what happened? See, जैसे ही ये बात सुनी from that Saint Peter, then she went up through the chimney. Okay, so the woman went up to the chimney of her house, being speechless. वो कुछ भी बोलने लायक नहीं रही, वो कुछ एक word भी नहीं बोल पाई, right? और उसी वक्त she had been converted into a woodpecker. Chimney भी you all know, right? चिमनी जैसे वहां पे जो फूड के लिए होती है, या वहां पे बहुत सारी, जो क्योंकि वो स्नोवी एरियाज है तो वहां पे तो वो लोग आग जलाने की एक स्पेसिफिक जगह रखते हैं, तो वहां से जो धुआं बाहर जाता है दैट इज चिमनी, राइट? सो व्हाट हैपेंड हियर? सो वो एक भी वर्ड बोलने के लायक नहीं रही. She went through the chimney, never speaking a word. उसके बाद उसने एक भी वर्ड नहीं बोला वो चिमनीज के थ्रू. और चिमनी यूजुअली एक वर्टिकल चैनल या पाइप जैसा होता है जिसमें से स्मोक और गैसेस जो मैंने कहा जैसे कि वो बाहर निकलता है, right? She had never spoke a word after that, and what happened? Then she had turned into a woodpecker. वो उसी वक्त woodpecker में convert हो गई थी, for she was changed to a bird, we can say. This woodpecker could be seen flying out of the top of the chimney. और इस woodpecker को, क्योंकि यहाँ पे चिमनी क्यों यूज किया है, she went through the chimney, और वो चिमनी के पर बैठी थी, right? And क्योंकि वो बर्ड में कन्वर्ट हो गए थे, and you can, मतलब anybody can see this bird flying onto the chimney, okay, top of the chimney. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब क्यों चिमनीज के थ्रू ही वो वहां से क्यों गई, राइट? क्योंकि वो बर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी, बट वो चिमनीज में से ही क्यों बाहर आई? उसका रीजन यहाँ पे दिया है, स्केलेट दैट इज ब्राइट रेड. क्योंकि यू कैन सी के वुडपेकर के जो हेड पे कलगी जैसा होता है, दैट इज स्केलेट कहते हैं इसको, ब्राइट रेड कलर का होता है. तब उसके सर पे ऐसी ये स्केलेट कैप जैसा हो गया है, राइट? ब्राइट रेड कलर का उसके हेड पे, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, फाइन. तो उसकी हालत क्या हो गई? वो सब उसका जो भी था ह्यूमन फॉर्म था, लेफ्ट द सेम, यानी उसका ह्यूमन फॉर्म पूरा छूट गया है. एज द वुमन हैड बीन वेयरिंग अ रेड कैप, ऐसा लग रहा है कि उसने रेड कैप पहन ली है, राइट? एंड दैट इज वी कैन से इन अ ह्यूमन फॉर्म, okay? And then as a woodpecker her head was still the same shade of red in color. पर जैसे ही वो woodpecker में कन्वर्ट हो गई उसका हेड वैसा ही रहा, राइट? बट ऑल द रेस्ट ऑफ her clothes were burned. बट उसके साथ क्या हुआ कि all the clothes she had been wearing seemed to have burned and had become black, and that is what the color of the woodpecker's body was. तो ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े जैसे पूरे जल के काले हो गए और वो उसकी वुडपेकर की बॉडी बन गई, राइट? एंड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, कैसी? कोल की तरह. सी यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, ओके? सो ऐसा लग रहा है कि वो चिमनी में से जैसे ही वो गुजरी उसके पूरे कपड़े जल गए और वो कपड़े इतने काले हो गए कि उसका एक बॉडी का रंग हो गया जो यूजुअली वुडपेकर के बॉडी का कलर होता है, फाइन. So this was what happened to her. Next, what happened? And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for both. Now what happened? The poet says that every schoolboy living in the village, उस village में जो कोई भी रहता था, right, had seen this woodpecker, and had that she still digs into the bark of the trees looking for worms and insects to feed on, right? So this was the end of the story के हर एक स्कूल के बच्चे ने उसे देखा है, उस कंट्री के या उस विलेज के या उस स्पेसिफिक जो भी प्लेस की बात कर रहे हैं पोएट, राइट? और आज भी वो वही काम कर रही है कि वो उसी ट्री पर वो बोरिंग एंड बोरिंग, दैट इज कि वो अपना फूड बाहर निकाल रही है. शी still digs into the bark of the tree and trying to get some worms, insects to feed on, right? So this was a poem of Feb Carey, okay? नीचे वही जो हमने बेला के बारे में बात की. So this was the poem which is we called, किस टाइप की पोएम है ये? We have seen that it is a ballet poem, okay? And ballet, that is
we can say a story in form of a song. Okay, now comes the figures of speech, or we can say poetic devices in the poem. See students, इसमें बहुत सारे poetic device है, मैंने सारे mention नहीं किए. In short, I want to say कि एक ही figures of speech है, but बहुत सारे paragraphs में repeat हो रहा है. So मैंने सिर्फ examples दिए हैं, बाकी के you will going to find it out by yourself. ठीक है, this is your homework. Now look at the first poetic device in the poem is a rhyme scheme. Rhyme scheme क्या होता है? It is completely new for you, so listen it carefully. Rhyme scheme का मतलब होता है कि कुछ जैसे पोयम की जो लिरिक्स होती है, राइट, पोयम्स की जो लाइंस होती है, उसे जिस तरीके से फॉर्म किया जाता है उसे राइमिकल वे में किया जाता है. तो यहाँ की राइम स्कीम क्या है वो मैं समझाती हूँ. जैसे स्टैंजा 6 में दिया है, I am being fed with fasting, for the day was almost done. He asked her from her store of cakes to give him a single one. Now you can say fasting को हम A ले लेते हैं, suppose करते हैं fasting is A, right? Okay, and done. Last words हम concentrate करेंगे rhyming scheme में. Fasting A ले लिया, done almost done B ले लिया, ठीक है, cake C ले लिया. अभी तक इस तीनों words में कोई भी rhymes नहीं है. ओके, ये राइमिकल वर्ड्स नहीं है, फास्टिंग, डन, केक्स. बट नीचे जो वन है, दिस इज अ राइमिकल स्कीम. ये किसके साथ मैच हो रही है? ये बी के साथ मैच कर रही है, दैट इज डन. डन वन. और ए और सी तो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, इसलिए हमने ए सी डाल दिया. ठीक है, सो वी कैन से कि ये कौन सी राइमिकल स्कीम हो रही है? ये ए बी सी बी राइमिकल स्कीम हो रही है. गेटिंग दैट ए इज नॉट मैचिंग टू बी और सी और बी, राइट. B is matching to 1, that is done is matching to 1, done 1, rhymically same है, इसलिए हमें क्या स्कीम दे दी? that is A B C B. ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? और एक एग्जांपल देखते हैं. स्टैंजा 14 मैंने उठाया, देखो. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब यहाँ पे देखो कौन से वर्ड्स राइमिकल है. चिमनी वर्ड, वुडपेकर बर्ड. चिमनी किसी के साथ मैच नहीं हो रही तो हम उसे ए दे देते हैं, ठीक है. वर्ड अभी तो किसी के साथ, हम उसे बी रख देते हैं. देन आफ्टर देखना है कि वुडपेकर का किसी के साथ मैचिंग है, चिमनी या वर्ड नहीं है तो सी डाल दो. बर्ड का मैच हो रहा है, यस, वर्ड बर्ड, ये राइमिकल वर्ड है तो हम उसे क्या दे देंगे? डी के जगह हम बी रख देंगे. तो हमारा राइमिकल क्या है? ए बी सी बी. So you can go through such all paragraphs of the poem and you can find such a rhymical words. ठीक है, ये A B C B के स्कीम में ही आपको मिलेंगे. ठीक है, दूसरे पैराग्राफ्स आप खुद go through करोगे, राइट. मैंने तो सिर्फ ये रफली उठाए हैं. You go through the other paragraphs and find out के यही आपको rhymical स्कीम में मिलेगी, A B C B. ठीक है. नेक्स्ट है सिमिली. सिमिली कहा था मैंने? दो तीन जगह पे यू एन फाउंड. मैंने लास्ट तो खुद ही बोला था कि ये देखो कि यहाँ कंपैरिजन है. जैसे एक कंपैरिजन दिया है, हमें पता है व्हाट इज सिमिली. सिमिली इज अ डिवाइस व्हिच कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड एज और लाइक. ठीक है, वी ऑल नो दिस. नाउ सिमिली कहाँ है पैराग्राफ्स में? एक तो लाइन थी स्टैंजा 2 में, दैट इज एंड चिल्ड्रंस लुक लाइक बेयर्स कप्स. ठीक है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन इज बीइंग कंपेयर्ड विद बेयर्स बेबी, कि वो चिल्ड्रन बच्चे कैसे दिख रहे हैं? जैसे बेयर्स के जो बच्चे होते हैं वैसे जैसे दिखते हैं, वैसे ही चिल्ड्रंस वो कपड़ों में दिखते हैं, राइट. सो हियर देयर इज अ कंपैरिजन बाय यूजिंग लाइक. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिमिली. नेक्स्ट और एक है एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. किस हद तक उसे बेक किया? उस हद तक कि वो वेफर की तरह पतला ना हो जाए. सो हियर द केक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द वेफर. उसकी केक की जो थिननेस है उसे वेफर की थिननेस के साथ कंपेयर किया गया है बाय यूजिंग एज. ठीक है, सो दिस इज वी कॉल्ड सिमिली. नेक्स्ट लाइन मैंने अभी बोली थी, दैट वाज इन स्टैंजा 15, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. सो कितना ब्लैक हो गया? कोल की तरह काला हो गया है. ठीक है, सो यहाँ पे कोल की ब्लैकनेस को उस लेडी के क्लोथ्स के ब्लैकनेस से कंपेयर किया गया है, राइट. So by using as, so this all words are similes, or this all lines are similes. ठीक है.
नेक्स्ट कम्स alliteration. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन alliteration की पुट ऑन की है. There are numbers of alliterations in this poem, but you are going to find it out by yourself. Now this is your homework. ठीक है. Alliteration we all know the sounds repeat or the consonant sounds repeat or letters repeat. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे the repeat हो रहा है, that is that, they. ऐसे हर एक लाइन में यू कैन एबल टू फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ. ठीक है, अब आप यूज्ड टू हो गए हो alliteration से. नेक्स्ट कम्स रेपिटेशंस. रेपिटेशंस भी मैंने एक ही दिया है, पीछे डॉट डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे रेपिटेशंस पोएम में है, यू विल फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ. रेपिटेशंस मींस व्हेनेवर अ फ्रेज और अ वर्ड रिपीट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन मैंने दी अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, तो अवे अवे रिपीट हो रहा है. फिर रोल्ड एंड रोल्ड रिपीट हो रहा है. तो ऐसे यू फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ. इफ यू आर गेटिंग देन राइट इट आउट इन योर बुक. ठीक है, मैंने सिर्फ एक एक ही रखे हैं आपको बताने के लिए कि alliteration है, repetitions है, बट यू विल फाइंड इट आउट मोर फ्रॉम बाय योरसेल्फ फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ठीक है. नेक्स्ट है एनाफोरा. ये आपके लिए बहुत नया है, सो थोड़ा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना. एनाफोरा क्या है देखो, रेपिटेशंस ऑफ द वर्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. आप अगर राइमिकल पोएम्स या जो भी देखते हो, राइम्स में हमेशा देखोगे कि रेपिटेशंस ऑफ द बिगनिंग में होते हैं. कुछ ऐसी लाइंस होती है जो उसके बिगनिंग की जो होती है वर्ड्स वो रिपीट होते हैं, और वो सेम लाइन ऐसे दूसरी लाइंस में भी रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे देखो टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर. तो यहाँ पे टू रिपीट हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि रेपिटेशन है. रेपिटेशंस में क्या होता है कि वो एक ही लाइन में वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हम रिपीटेशन कहते हैं, बट द वर्ड्स रिपीट इन द सेम मैनर. जैसे यहाँ पे टू बिगनिंग में ही रिपीट हो रहा है, फर्स्ट वर्ड ही उसका रिपीट हो रहा है. राइट, सी टू और टू दोनों में बिगनिंग में ही रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसे एनाफोरा कहेंगे. रिपीटेशंस में क्या होगा, एक सेंटेंस में टू ड्वेल, टू इन अ ह्यूमन फॉर्म ऐसे हो तो वी कैन से टू रिपीट हुआ इन अ सेम लाइन. When it is in a same line repetitions, तो हम उसे repetitions कहेंगे. But if it is repeated in another line in the beginning in same manner, rhymical way में वो manner जाएगा. Getting? That is to dwell in a human form, to have both. तो ये जो होगा to इस manner में अगर होगा lines में, so we call it as anaphora. Getting? Next comes enjambment. Enjambment भी नया वर्ड है फॉर यू पीपल, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर कि ये क्या है. कंटिन्यूइंग अ लाइन आफ्टर द लाइन ब्रेक्स. पोएम्स में क्या होता है, हम यूजुअली पंक्चुएशन मार्क्स ध्यान रखते हैं, राइट, बट यहाँ पे कैसा होता है कि पोएम्स में क्योंकि ये बाला है, ठीक है, सो बाला में क्या होता है, क्योंकि ये स्टोरीज के फॉर्म में है, तो स्टोरीज की फॉर्म में जब वो लाइन इनकम्प्लीट रह जाती है, बट हमें तो पोएम के फॉर्म में दिया है ना, तो पोएम में अगर लिखना है तो वो लाइन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन से. गेटिंग? तो जब वो लाइन कंटिन्यूस होती है तो पीछे हम पंक्चुएशन मार्क नहीं रखते. यू कैन सी कि जैसे एनाफोरा में मैंने जो लाइंस दी है, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कॉमा, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कॉमा, यानी ये सेंटेंस समवेयर इट्स कंप्लीटिंग, ये इनकम्प्लीट नहीं हो रहा है. But whenever you find such sentence which are incomplete और दूसरी लाइन में वो वापस दिखाया है without any punctuation marks, so we call it as enjambment. For example, देखो मैंने एक पैराग्राफ उठाया, away in the north land, comma, ठीक है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया. Where the hours of the day are few, ये भी यहाँ फिनिश हो गया, कॉमा आ गया, मतलब ठीक है, यानी ये लाइन एटलीस्ट कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट लाइन देखो, and the nights are so long in winter, ये लाइन के बाद देखो नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, no punctuation mark is given. Next line देखो, that they cannot sleep them through, यानी ये दोनों लाइन एक्चुअली एक साथ होनी चाहिए थी, यानी ये इनकम्प्लीट लाइन को नीचे से कंटिन्यू किया है. So that's why we call it continuing a line after the line breaks. So यहाँ ये लाइन ब्रेक हो गई विंटर तक और वो कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट लाइन से. So विंटर के बाद क्योंकि यहाँ कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो हम उसे कहेंगे enjambment. तो ये जो लाइन है, and the nights are so long in winter, this line we call as a enjambment. ठीक है, ये स्टैंजा 1 में है, ऐसे स्टैंजा 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है. So you can found in each and every paragraph of this poem. इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया यहाँ पे. So you will find it out by yourself. enjambment कहाँ है, और वही लाइंस आपको लिखनी है. जैसे यहाँ पे and the nights are so long in winter, ये लाइन enjambment लाइन है.
ठीक है, तो ऐसे जितने भी स्टैंजर्स आप गो थ्रू करोगे और जहां जहां एन्जाम्पमेंट दिखेगा वो आपको बुक में लिख लेना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। सो फिगर्स ऑफ स्पीच में ही मैंने आज होमवर्क दिया है प्रॉपरली, क्योंकि आज आपको खुद फाइंड आउट करके खुद लिखना है, सो दैट कि आप फिगर्स ऑफ स्पीच से या पोएटिक डिवाइसेस से यूज टू हो। सो हियर मेरी पोएम फिनिश होती है, और आई कैन से माय बेला इज गेटिंग फिनिश, राइट? एंड ट्राई टू डू योर होमवर्क। फिगर्स ऑफ स्पीच को समझिए, इस बार बहुत सारे नए नए 2-3 मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच उठाए हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, ट्राई टू फाइंड इट आउट द पोएम सो दैट आप यूज टू हो जाओ। अदर देन दैट, बाय, थैंक यू, सी या, टेक केयर।